تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جو ایک جنریشن ہے نا، میں اپنے بڑوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، مجھے احترام سکھایا گیا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب بڑوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اور میدان خالی کر دینا چاہیے بلاول اپنے سے بھٹو کی ینگر باتیں کر جنریشن رہے کے ہیں لیے، بہتر جنریشن کے لیے. نہیں، بلاول بھٹو نے بات تو ٹھیک کی ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو میدان اس وقت خالی نہ ملے جب وہ خود بھی بدلنے کے قابل نہ رہے. اور ابھی تک تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں. مثلا شہزاد چودھری صاحب نے ایک بات کی، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر فضل الرحمان کو اور پتہ نہیں دوسرا کس کا کہا، ان کو اشارہ کریں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ اشارہ کرے گی تو وہ تو آ جائیں گے فوراً. ایک اس میں مس کر گئے، وہ پی ٹی آئی کو بھی اشارہ کرے گی نا اسٹیبلشمنٹ. پی ٹی آئی کو اشارہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا چاہیے، ان کو اشارہ ملے گا، وہ بھی اپنی تحریک بھول کے ادھر آ جائیں گے. بات تحریک کی نہیں ہے. جو حسن نثار صاحب نے جو بتایا نا الاپ سے اس کا قوالی شروع ہونے کا، مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ جو جنریشن ہے 17-72 تمام سیاسی لیڈرشپ یہ ٹھنڈی ٹھمری گا رہے ہیں اور اس پہ ڈسکو ڈانس کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہے، یہ کوئی قوالی، کوئی الاپ شلاپ، ایسے بس باتیں ہیں. دو راستے ہیں صرف، ایک وہ جس کو حسن نثار صاحب انقلاب سمجھ رہے ہیں، میں انتشار سمجھ رہا ہوں. ایک وہ راستہ ہے، خانہ جنگی کروانی ہے تو کروا لیں. میں انقلاب میں بلیو ہی نہیں کرتا بھائی. دوسرا کس پہ؟ انقلاب پہ. اچھا چلیں انتشار ہی ہے نا پھر تو. آپ انتشار کی بات کر رہے ہیں نا. انتشار ہوگا، ہو سکتا ہے انتشار ہو جائے. میں نہیں بلیو کرتا، میں بلیو نہیں کرتا کہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں انتشار ہو سکتا ہے. میرا اپنا تجربہ ہے، حسن صاحب کا مجھ سے بہتر تجربہ ہوگا، وہ ٹھیک ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. یہاں کوئی نہیں خانہ جنگی، کوئی انقلاب، کوئی تحریک، کچھ نہیں ہونا. یہ ایسے باتیں کریں گے لوگ، یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے، تو گالیاں نکال کے سو جائیں گے کیتھارسس کر کے. ہماری جنریشن جو ہے نا 17-72 کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا ڈسکنیکٹ اتنا زیادہ ہے ینگر جنریشن کے ساتھ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا. یہ جو اسمبلی میں آپ تقریریں سن رہے ہیں انقلابیوں کی، کوئی انقلاب نہیں ہے، سب اندر سے ملے ہوئے ہیں. کے پی میں بھی اتنی دھاندلی ہوئی جتنی پنجاب میں ہوئی ہے، سندھ میں ہوئی ہے یا بلوچستان میں ہوئی ہے. وہاں تو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر گئے اور سویلین سپریمیسی کرنی ہے. اتنی منافقت اس پولیٹیکل کلاس پہ اور ان کے سپورٹرز پہ، میں تو حیران ہو جاتا ہوں. سچ بول نہیں سکتے، سچ کا سامنا نہیں کر سکتے، اور لانا ہے انقلاب. کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کوئی انہوں نے تحریک نہیں چلا سکتے. لکھ کے لے لیں میری بات. ووٹر نے، ینگسٹر نے کیا کیا ہے؟ ینگسٹر نے ان 17-72 کو ایک میسج دیا ہے کہ، اور اس میں سارے شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں. اس نے یہ میسج دیا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں اس نظام سے، اور میں پرامن طریقے سے اپنے گھر سے نکلا ہوں، ووٹ ڈالا ہے اور اپنی نفرت کا اس نظام کے لیے اظہار کیا ہے پرامن طریقے سے. سمجھ جائیں. نہیں سمجھیں گے ان کے اپنے گھروں سے ان کو گالیاں پڑیں گی. یہ کیا بات ہوئی؟ سڑکوں پہ وائلنس ہونا، یہ ہونا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہونا ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا ہم تحریک چلا لیں گے، کسی نے نہیں نکلنا. ووٹر نے وہی کام کیا ہے جو میچور ہو چکا ہے. وہ نہیں سڑکوں پہ آئے گا خون بہانے کے لیے، نہ لڑنے کے لیے. اس نے بتا دیا ہے کہ مجھے کیا چاہیے. یہ سنے کان کھول کے جن کو وہ بتا رہا ہے. اگر نہیں سنیں گے تو پھر یہ ملک نہیں بچے گا. یہاں وائلنس چھوڑے، اللہ معاف کرے، ملک نہیں بچے گا. یہ سن لیں کان کھول کے جن کو ووٹر نے میسج دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور کچھ نہیں ہے کہ بدل لیں اپنے آپ کو، اور کچھ نہ کریں، صرف بدل لیں. تو یہ تحریکیں شریکیں یہ کچھ نہیں چلنا. بس ایکسپلائٹیشن ہوتی رہے گی کسی لیول پہ، اور کوئی ایکسپلائٹ ہوتا رہے گا. لیکن ایک آگ گھروں تک پہنچ گئی ہے اور پہنچے گی. صرف اس میں کسی سیاسی لیڈر کی کامیابی نہیں ہے. یہ نئی جنریشن کی اپنی سوچ ہے، وہ کسی کو برداشت نہیں کرے گی. زغم صاحب کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں ملیں گی، وہاں سے تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے. جو سیاسی مخالف تھے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں. ابصار صاحب کہہ رہے ہیں نہ سچ ہے، نہ انقلاب ہے، نہ تحریک ہے، مگر ووٹر میچور ہو گیا ہے جس نے پورے نظام پر عدم اعتماد کا یا سسٹم کے خلاف آواز دے دی ہے. کیا پولیٹیکل ایلیٹ میچور ہوگی؟ یہی طریقے ہیں، یا بیٹھ کر بات کر کر یہ کوئی راستے نکال پائیں گے؟ آپ انقلاب کو، انتشار کو، تحریک کو ایک طرف رکھتے ہیں. دیکھیے جو احتجاج ہے، میں اسے انسانی تہذیب کی معراج سمجھتا ہوں. لاکھوں سال تک وہ باتیں جو تیر اور تلوار اور بندوق کے ذریعے کی جاتی تھی، انسان نے اسے پرامن احتجاج کے ذریعے سے کرنا اور منوانا سیکھا ہے.
हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हमारे माशरे में, हमारे गवर्नेंस सिस्टम में, हमारी जमहूरियत में वो स्पेस होनी चाहिए कि लोग पुरअमन तौर पर एहतजाज करना भी सीखें और हुक्मरान पुरअमन एहतजाज को बर्दाश्त करना भी सीखें। देखिए, टेक्निकल बुनियादों पर जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, ये बहुत बड़ी हक तलफी है। एक आईनी उसूल की नफ़ी की गई है, जो आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आपको आपकी पार्टी की सीटों के तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। टेक्निकल उनके पास गुंजाइश मौजूद थी इलेक्शन एक्ट के हवाले से, लेकिन वो पहले भी एक मुख्तलिफ फैसला कर चुके थे माजी में, अभी भी वो कर सकते थे। अब इस हक तलफी के नतीजे में एक तरफ तो नाराज़गी होगी और दूसरी तरफ आपको पता है इस तरह की हक तलफी में एक किस तरह का एक माहौल पैदा होने जा रहा है। आप ज़रा केपी की असम्बली का सोचिए, जहां एक मेंबर के बदले में आपको 4 या शायद उससे भी ज्यादा रिजर्व सीट्स मिलेंगी। कैसी जमहूरियत होगी वो? एक मेंबर मुंतखब आया है और साथ में पकड़ के 4 रिजर्व को ला रहा है। ये कैसा मजाक होगा? अब ये जो जमातें, मैं नहीं समझता कि पीटीआई के साथ ये दूसरी जमातें आसानी से एक एजिटेशनल मूवमेंट में चली जाएंगी, उसके साथ इकट्ठे तैयार होंगी बड़ा एहतजाज करने को। मौलाना साहब पे तो मुझे बहुत ही शक है। सबसे ज्यादा जो ताकत है वो मौलाना साहब की है, क्योंकि मौलाना साहब के लोगों पर तशद्दुद करना, उनकी पिटाई करना, उनके साथ वो करना जो पीटीआई के साथ हो रहा है, मुमकिन नहीं है। इसलिए मौलाना साहब को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मौलाना साहब वो रेड लाइन क्रॉस करते हुए अपने सियासी मकसद के हवाले से मेरे ख्याल में बहुत देर लगाएंगे। शायद ना करें, वो शायद मान जाएं। अचकज़ई साहब के भी अपने मसले हैं, उनको भी मनाया जा सकता है और अचकज़ई साहब की जो एजुटेशनल पावर है वो बहुत ही महदूद है, बलूचिस्तान तक है, वो बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं दे सकते किसी मूवमेंट पे। लेकिन पीटीआई खुद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, एजुटेशनल उसके पास पावर मौजूद है, वो कर सकती है एजुटेशन। उन्होंने जो उसकी एहतजाजी सियासत है वो उसकी ताकत भी है और उसके लिए मुसीबत भी है। इस एहतजाजी सियासत से उन्होंने बहुत कुछ कमाया भी है, लेकिन अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही भी की है। अब ये फैसला खुद करना है। मूवमेंट तो मोमेंटम बना लेती है। अब जो सबसे बड़ी मुझे कंस्ट्रेंट नज़र आ रही है पीटीआई पे एहतजाज में, वो बन रही है केपी की हुकूमत। जहाँ पर आप हुकूमत चला रहे होते हैं वहाँ पर आप एहतजाजी तहरीक नहीं चला सकते। तो वो क्या एहतजाजी तहरीक होगी जिसमें मिनिस्टर्स शामिल होंगे, मेंबर्स शामिल होंगे, हुकूमती पार्टी शामिल होगी। तो अगर केपी में वो तहरीक नहीं चला सकते और पंजाब में तहरीक चलाएंगे, पंजाब में जहाँ एक बहुत हॉस्टाइल मुखालिफाना उनको एनवायरनमेंट मिलेगा, तो मेरा ख्याल है उनके लिए एक मुश्किल होगी। और शायद इस बार ये भी आसान नहीं होगा कि वो केपी से लोग लाकर इस्लामाबाद में एजिटेशन करें। इस्लामाबाद के लिए इस्लामाबाद के लोगों को निकालना होगा। और सबसे बड़ा जो उनका मसला है, देखिए ये पीटीआई वर्सेस मुस्लिम लीग नवाज नहीं है, ये पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी नहीं है। उन्होंने जो सींग अड़ा लिए हैं वो पाकिस्तान की मुक्तदरा से, इस्टेब्लिशमेंट से अड़ा लिए हैं। इस वक्त जब वो तहरीक शुरू करेंगे कि उनको सिर्फ हुकूमत की ताकत नहीं फेस करनी पड़ेगी, शायद मुंतखब हुकूमत तो उनको रास्ता भी दे दे, उनको जगह भी दे दे, लेकिन उनको क्या इस्टेब्लिशमेंट भी इजाज़त दे देगी कि वो तहरीक चला लें? और जितना वो नुकसान पहले एहतजाजी तहरीकों में कर चुके हैं, क्या उस पर वो अपने कारकुनों का, अपने लीडरों का मज़ीद नुकसान करना चाहेंगे? दुरुस्त हो गया। मेरा ख्याल है जब वो तहरीक उनकी सियासत का असल हदफ अभी एस्टेब्लिशमेंट ही है। तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। अब बराह रास्त लड़ाई की बजाय सर्द जंग का आगाज कर दिया गया है, जिसका इख्तिताम न जाने किया होगा। महमूद खान अचकज़ई की कौमी असम्बली में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ धुआंधार तकरीर के बाद उन्हें अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करके ताकतवर हलकों को दूसरा पैगाम दे दिया गया है। सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी ने अहम सवालात उठा दिए। जियो में शाये होने वाले अपने ब्लॉग में इन्होंने लिखा कि इमरान खान की सियासत का असल हदफ अभी एस्टेब्लिशमेंट ही है। पहले लड़ाई अगर खल कर लड़ी जा रही थी और एस्टेब्लिशमेंट और फौज की आला क़यादत पर बराह रास्त हमले किए जा रहे थे, जिसका नुक्ता उरूज 9 मई था, तो इंतखाबात में मुबैना धांधली के बावजूद अपनी बड़ी कामयाबी के बाद अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस लड़ाई के लिए अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। अब बराह रास्त लड़ाई की बजाय एक सर्द जंग का आगाज कर दिया गया है, जिसका इख्तिताम न जाने किया होगा।
9 मई के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की तरफ से संगीन इल्जामात के शिकार अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनवा कर एस्टेब्लिशमेंट को पहला वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि इमरान खान की लड़ाई जारी है। इसके बाद अब महमूद खान अचकज़ई की कौमी असेंबली में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ धुआंधार तकरीर के बाद उन्हें अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करके ताकतवर हलकों को दूसरा पैगाम दे दिया गया है कि इमरान खान अब भी डटे हुए हैं। कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकरीरें और मीडिया टॉक सुने तो उनका इशारों की नायों में असल निशाना एस्टेब्लिशमेंट ही है। इंतखाबात से पहले तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का मकसद एस्टेब्लिशमेंट से टूटे हुए राब्तों को बहाल करना था, जिसका इमरान खान बार बार इजहार करते रहे और यहाँ तक कि इलेक्शन से 1-2 हफ्ता कबल तक ये शिकायत की कि उनसे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया जा रहा। अंसार अब्बासी ने ब्लॉग में मजीद लिखा कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी के बाद इमरान खान की हिकमत अमली का क्या मकसद है? क्या वो वाकई कानून की हुक्मरानी और एस्टेब्लिशमेंट को आइंदा के लिए सियासत से दूर रखना चाहते हैं, या उनकी अभी कोशिश यही है कि मुक़्तदर हलकों से उनके राब्ता और ताल्लुकात बहाल हों ताकि उनके लिए मौजूदा मुश्किलात से निकलने और इक़्तिदार में आने का रास्ता हमवार हो सके? इमरान खान की जद्दोजहद अगर वाकई कानून की हुक्मरानी के लिए है और वो वाकई एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रखना चाहते हैं तो फिर उनको खुलकर इसका ऐलान करना चाहिए। उनको एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत और राब्तों की बहाली की ख्वाहिश की बजाय अपने माजी की गलतियों, जहां उन्होंने अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार के उसूल के लिए एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल की, को तस्लीम करते हुए तजावीज़ देनी चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत को कैसे एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत से दूर रखा जा सकता है। अंसार अब्बासी ने ब्लॉग के आखिर में लिखा कि अभी तक तो हम दायरों का सफ़र ही जारी रखे हुए हैं। कभी कोई एक सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा बनती है तो कभी कोई दूसरी। जब किसी सियासी रहनुमा और सियासी जमात को एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत का सामना होता है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है एस्टेब्लिशमेंट के साए तले सियासत और इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने तमाम उसूल और बयानिए भूल जाते हैं। नवाज शरीफ और नून लीग के वोट को इज्जत दो के नारे के साथ यही कुछ हुआ। कोई शक नहीं कि इंतखाबात में मुबैना तौर पर बड़ी धांधली हुई, जिसका असल निशाना तहरीक इंसाफ थी। इस सिलसिले को रोकने के लिए सियासतदानों को ही किरदार अदा करना होगा, जिसके लिए बार बार अपने सियासी मफादात और हुसूल इक़्तिदार के लिए उन्हें अपने आप को इस्तेमाल होने से रोकना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत बनाने वाली नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से तो तवक्को नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर करने के उसूल पर उस वक्त बात करें, लेकिन क्या इमरान खान इस उसूल पर कायम रह सकते हैं? इसका भी यकीन नहीं। बेशक इमरान खान के पास एक मौका ज़रूर है कि वो अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार के हुसूल के लिए एस्टेब्लिशमेंट की मदद लेने के ख्याल को तर्क कर दें और अपनी सियासी लड़ाई को पुरअमन तरीके से अवाम की हिमायत से आइन व कानून की हदूद में रखें। कोई तो हो जो सबक सीखे।